Hi, guys, and welcome to Live Talks with Karan. In today's episode, I have a guy who invented the Covtech ventilation system, and he's the CEO of What Technovations. So, hi, Nihal. Hi, hello, Karan. How are you? I'm fine. How are you doing? I'm also good. So, Nihal, कुछ बताओ यार इतना इतना छाए हुए all over the news and everything is happening. कुछ बताओ अपने बारे में. So, my name is Nihal Singh Adarsh. I am a second year engineering student at KJ Somaiya College of Engineering, and I'm the chief innovator or like the inventor of the Covtech ventilation system, which is a ergonomic and compact ventilation system specifically designed for the PPE kits. And I'm the founder of What Technovations Private Limited, which is my own tech startup where we aim on building tech-based solutions to a wide array of problems faced by humans on a very wide scale. Yeah. Nihal, ये idea कैसे आया? So, can my mode of do you want my mode of Yeah. We can talk in English. It's basically you can be Hindi, English as per you're talking to a friend, bro. As per you're talking to a 20-year, 25-year-old कि दोस्तों में बातचीत चल रही है. We're gonna communicate like that. Yeah, continue. बिल्कुल. तो the whole idea actually started last year in the month of May. तो हम सबको कॉलेज से छुट्टी दी गई थी ना. तो लॉकडाउन में everybody, all of us was back at home and we were like we were all basically we were just finishing up the semester online mode में थोड़ा बहुत सबमिशन करके सब टाइम निकाल रहे हैं बेसिकली. तभी मेरा कॉलेज KJ Somaiya College of Engineering मुंबई एंड मेरा टेक्नोलॉजिकल बिजनेस इंक्यूबेटर रिडल RIIDL इन्होंने एक डिजाइन चैलेंज लॉन्च किया बेसिकली रिडल ने कि if anybody has any kind of COVID related problems ka solution, then submit your applications. So that's when it immediately hit me that my mom, who Dr. Poonam Kaur Adarsh, who has been and who is still now dealing with COVID patients. So I immediately it struck me that I can ask her. So I went to my mom and said, Mama, एक ऐसा competition है. So as a doctor, आप क्या daily problems face कर रहे हो while treating COVID patients? What are the problems that you are facing as a doctor on a daily basis? That's when she highlighted the problem of wearing thick PP suits for long hours with absolutely poor ventilation to me, and she basically told me that problem is very prominent and every doctor is facing it. So I was like, you know what, something should be done for this problem, and this is something we can do. So immediately I stayed up overnight, and I immediately had so while running on the treadmill, I got an idea of some kind of product and some shapes, and everything started coming to my head. So I stayed up overnight and I drew a hand sketch of the first prototype, how it could look like. So engineering drawing make isometric sketch की चीज होती है. You have to make front view, side view, and angle view. So एक isometric sketch बना दिया मैंने, and then immediately फिर मैं first year में था, so I did not know what to how to design everything. Practically कैसे हो सकता है? हाँ मन में तो सोच लिया. हाँ प्रैक्टिकली वो डिजाइनिंग एस्पेक्ट मतलब प्रैक्टिकली उसका पीछे का इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे आता था बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा खुद का ब्रांच है. मैं 10th से करते आ रहा हूँ ये सब चीजें. तो इलेक्ट्रॉनिक्स का मुझे आइडिया था थोड़ा, बट वो डिजाइन कैसे होता है, उसका वेट लिमिटेशन, उसका शेप लिमिटेशन, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज, वो सब मेरे को इनिशियली तो आइडिया नहीं था. सो आई कॉन्टेक्टेड वन ऑफ माई हॉस्टल सीनियर्स एंड माई कॉलेज सीनियर्स, ऋत्विक मराठे. He is a mechanical engineer and he is very profound and proficient in the SolidWorks and 3D building software. So मैंने उनको अपना डिजाइन भेजा, बोला कि भैया मैं किसी प्रोजेक्ट में कंपटीशन में पार्ट लेने की सोच रहा हूँ, and will you like to join me in the initial designing process? So that's what he did. He said yes and immediately was on board, and then we immediately applied for the application. And last year in the month of May, in the middle of peak lockdown here in India, on 17th May, I took special permissions from government and my college, and then I traveled all the way to Mumbai and in my college, and basically जो मेरा हॉस्टल रूम था ऑलरेडी मैं वहीं पे रहा और 21 दिन मुझे कॉलेज के लैब की चाबी दे दी गई थी बेसिकली. You're talking about the peak moment, मतलब अप्रैल और मार्च की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जब एकदम स्टार्ट था. May 17 अप्रैल में पूरा May 17 एकदम मतलब आई कैन से कि मुंबई में बिल्कुल पीक था सिस्टम, राइट? पीक एब्सोल्यूट पीक. मुंबई में जो एब्सोल्यूट पीक था उस टाइम पे आई बेसिकली मुझे स्पेशल परमिशन मिले एंड मैं चला गया उधर. एंड उस टाइम लकीली मेरे मॉम डैड ने भी अलाउ किया, एंड लकीली मतलब you're blessed to have the support of your parents, government and all that stuff, man. इतना अगर if you're talking about India and ये सारे rules ना आज लगता है कि जैसे निहाल has done all of these things, but somewhere down the line I think कि you are blessed also. एक होता है lucky you got the idea, right? लेकिन वो सब कुछ placement आना is a big deal. कुछ लोगों के पास yeah. तो यूनिवर्स का सिंक्रोनाइजेशन एक साथ हो गया लकीली मेरे लिए. एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस ऑटोमेटिकली. ऑफ कोर्स देयर वाज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, बट देन थिंग्स फेल इनटू प्लेस.
so matlab basically a lot of things fell into place surprisingly and magically. Of course there was a lot of hard work and dedication. So a lot of things fell into place and मुझे परमिशन मिल गई, मैं कॉलेज चला गया. मेरे कॉलेज वालों ने हॉस्टल में मेरा पूरा रहने का, खाने पीने का सब ध्यान रखा, जबकि हॉस्टल फुल खाली था. देयर वाज लिटरली नॉट अ सिंगल सोल इन द कैंपस. बस मैनेजमेंट स्टाफ था थोड़ा सा, और मैं अकेला भटक रहा हूँ. इंजीनियरिंग बिल्डिंग में बहुत बड़ा कॉलेज है, तो मैं अकेला भटक रहा हूँ. एंड आई हैड द कीज विद मी फॉर द इंजीनियरिंग बिल्डिंग एट द लैबोरेटरी. So I used to stay in the lab entire nights. I used to sleep there on the couch and everything. So I basically, within the first 21 days, I came up with the first working prototype, which was something based on the neck. It was something to be kept on the neck or something. So I made that, and वहाँ से फिर शुरू हुआ ये सब, फिर patenting and then धीरे-धीरे suppliers ढूंढना. So ये beginning था इसका एकदम. जो business aspect आई तो ठीक है, लेकिन जैसे you were telling me prototypes and all that stuff, इन सबको ऐसा नहीं है मन के अंदर के मतलब फंडिंग एंड ऑल दैट, टाइम भी लग रहा है, एफर्ट भी लग रहा है. एंड यू बीइंग अ 19-year-old, मतलब होता है यार फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हम पढ़ाई के लिए टाइम निकाल लें. अगर सो कॉल्ड में हमारी बात, इस जनरेशन की बात करूं तो इतना कुछ है, क्लस्टरिंग कि पढ़ाई भी करनी है, रिलेशनशिप को भी टाइम देने हैं, और मतलब वगैरह वगैरह. सो हाउ डिड यू मैनेज? बेसिकली होता है कि टाइम कैसे मैनेज हुआ. मतलब आई नो इट्स लाइक काइंड ऑफ सेइंग कि जब कुछ करना होता है तो करना होता है, तो फिलॉसफी सबको पता है. वॉच मल्टीपल स्पीकर्स स्पीकिंग एट दी कि बड़े से बड़ा यही कहता है कि जिसको जो काम करना है वो करना ही है फिर. लेकिन स्टिल अ गाय लाइक यू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोबी ब्रायंट, टेस्ला, दैट एलन मस्क, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीस गाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट यू, निहाल सिंह, राइट, अपकमिंग स्टार. ऐसा होता है कि ओके 19 साल का लड़का यार, ऐसे लाइन में हम अपने बैक ऑफ द माइंड सोचते हैं कि बस 19 साल का, क्योंकि हमारी में ना एक थॉट प्रोसेस में एक चीज है कि 19 साल का या तो ये चीज होगी, या फिर दूसरी आएगी यार 19 साल के लिए देख क्या काम कर दिया, और हम 19 साल में क्या कर रहे थे. People start comparing. Yes, they do. So how do you? So time management definitely बहुत बड़ा चैलेंज था. तो लेकिन लकीली क्या हो गया कि जो प्रोजेक्ट का इनिशियल फेज था तभी लॉकडाउन की वजह से चीजें बंद थी. सो एंड सेमेस्टर का तो टेंशन हट गया था इमीडिएटली. एंड और जब कॉलेज जब शुरू हो गए तो आपको तो मालूम है ऑनलाइन कॉलेज में ज्यादा लोड है नहीं. जस्ट यू हैव टू स्टडी ड्यूरिंग द एग्जाम्स टुवर्ड द एंड. सो बीच में काफी टाइम मिल जाता है. And surprisingly, all my personal relationships, be it romantic or platonic, all of my friends have been really supportive. Basically, थोड़ा सा mess up था बीच में, but then ठीक है, I pushed it at the back of my head, and all of them have been really supportive regardless. मतलब, so वहाँ पे मुझे कुछ तकलीफ नहीं हुई. And basically, time management के लिए I have इधर भी पढ़ी है. It's like small diary. Yeah, journaling. You do journaling. Yeah, myself do. I also journaling से ज़्यादा मतलब not like I used to write my daily journey and what I'm doing right now, but मेरा रोज सुबह का ऐसा 4-5 कॉलम है 7 AM and I have to accomplish them in the given certain period of time. हाँ, बस थोड़ा एक jot down कर दिया ना, तो you just have a direction to go in, and मतलब हर रोज वो फॉलो होता है ऐसा जरूरी नहीं है. फिर थोड़ा बफर डे रख दिया सैटरडे को, फिर सब रिमेनिंग कवर कर दिया थोड़ा खींच के. तो कहीं ना कहीं जाके वो एलन मस्क वाला टेक्स्ट बुक चीजें करनी पड़ती है, लिखो, शेड्यूल बनाओ, करनी पड़ती है बहुत फंडामेंटल है ये सब चीजें. एंड यू रियलाइज व्हेन यू आर एक्चुअली डूइंग इट, देन ओ माय गॉड, एक्चुअली दे मेड सेंस, इट वर्क्स. नहीं तो अदरवाइज लगता है हाँ इट वर्क्स वाला चमकता है सडनली. तो वो भी मुझे भी हुआ वो when I started doing it. So because after a point things are मतलब चीजें इतनी सारी tasks बढ़ गए ना कि मुझे याद नहीं रह पा रहा था. मेरे फोन में भी Microsoft का to do list वाला ऐप है, so it gives a nice you get a nice feeling of checking it out. हाँ, you are not having right now a team of कि भाई मैं बहुत फेमस बन जाऊँ और मेरे बिल्कुल ही 25 लोग मेरे आगे पीछे कि okay निहाल today is your this interview at this time. निहाल तो वही है कि घर में बैठ के खुद ही करना है कि भाई अच्छा okay खुद ही रिसीव करना है, खुद ही क्या बोलना है right now. Please, I hope that happens one day कि फिर से जुड़ना पड़े और निहाल वापस से बिल्कुल 25 years of old निहाल has done this and this guy has been doing wonders since 19 years of age. हम ऐसे खड़े, बहुत अच्छी बात है. Thank you so much. In fact अभी है कुछ लोग, अभी I have somebody, a friend of mine who monitors emails and tells me कि कब कौन सा interview है, कब किसके साथ बात है. No, it's a big deal bro, it's a big deal. I know that it's a big deal. While coming I came back like मैं 18-12 के बाद I came off 12th right over here. So I know the real struggle. Like एक होता है कि when you live up to the with your parents in India में, जो मैं कहता हूँ ना, जैसे मेरी दोस्तों से ही बात होती है कि तुम्हें सच में नहीं पता, if you're living right now with your parents you don't know how practical things work, you don't know. कॉलेज के बाद एकदम से आंखें खुलती हैं, ओ भाई मैंने भी हॉस्टल जाके सीखा है, जैसे होता है ना, ओ भाई साहब क्या हो गया. Literally. Yeah. मैं यही चाहूंगा कि ये मोमेंटम ना तुम्हारा ब्रेक ना हो, because I can see ये फर्म जो बनी है, मैं एज अ थिंकर भी ये चीज कह सकता हूँ कि ओके अगर ये फर्म बन चुकी है तो यानी अब इसमें ऐसी ही चीजें आएंगी जहाँ पे इनोवेशंस होनी है, जहाँ पे अब निहाल ने एक बेस तैयार कर लिया है, उसके बाद तो बस
ये चलनी है, it's a 40 years long game कि चलता रहेगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा. I wish कि ऐसा ही रहे और बाकी लोगों से मिलते. Tell me something about, I heard you saying your role models are like Ratan Tata and that's quite fascinating. इसके अपने role models के बारे में बताओ यार. ऐसे role models क्यों, कोई और क्यों नहीं? Film stars भी हो सकते हैं, मुंबई में रह रहे हो, मतलब वैसे बोल रहा हूँ कि yeah, that's a fun part. The main reason why my role models have been rooted and like some इस type की क्यों है is because my father used to work in Mahindra & Mahindra in the Scorpio IDAM division. अगर आपको याद है Scorpio जो गाड़ी थी इंडिया में बहुत हिट हो गई थी. It was crazy hit गाड़ी. मतलब Mahindra actually company डूबने वाली थी. They had the last few set of fund remaining and then they gambled it on Scorpio and then the company picked up and you know how it is now. Right. Yeah, it went crazy. So Fortuner वाला हाल हो गया था एक टाइम पे, जैसे इंडिया में अभी Fortuner आई थी, बस स्कॉर्पियो हो गया था. मतलब लिटरली एवरी अदर कार है स्कॉर्पियो. हर गुंडे के पास, हर छोटे मवाली के पास, हर पॉलिटिशियन के पास, everybody from rich to rags, everybody had a Scorpio. So in that phase my dad was one of the he designed this axle and suspension of the first Scorpio ever made. He was in that design team because my dad's a BTech from IIT Bombay. So उनका मैकेनिकल वहां पे हो गया, तो immediately he joined Mahindra basically. मदर डॉक्टर पापा उसमें, तो तुम्हें तो करना ही था. ऐसे कोई सवाल नहीं पूछा जैसे टिपिकल रिपोर्टर की तरह मैं पूछूं. कोई बड़ी बात नहीं अगर निहाल ने इतना कर लिया तो, क्योंकि देखो जीन्स में ही है, निहाल में तो जीन्स में ही है. मतलब वो जो क्वेश्चन, वो जो सेंटेंस है, वो तो मतलब मैंने भी कई बार बोला है. मतलब यहाँ पे मैं 13 आवर्स दिन में काम कर रहा हूँ और बाकी सब जीन्स में हो रहा है. मतलब क्रेडिट जीन्स को मिल रहा है, मैं कर रहा हूँ. मतलब राइट हाँ सही बात है. हो जाता है. So my dad used to work in Mahindra & Mahindra and he has personally worked with the back then VP Mr. Goenka and Anand Mahindra himself. तो उनकी जो बचपन से स्टोरी सुनते आ रहा हूँ मैं कि आनंद महिंद्रा किस टाइप के थे. These are industrialists. Yeah, these are like industrialists. They are not like commercial businessmen. You know, they're industrialists. They have a much bigger aim and much bigger vision rather than just making a billions of dollars का firm. उनका बहुत बड़ा ऑलरेडी है यार उनके पास. एक बात है, मतलब हमें लगता है कि वहां तक पहुंच जाए, हम सिर्फ इतना हाइंड से रखते हैं ना कि ओके we'll become a millionaire. वेस्टर्न का कॉन्सेप्ट कि मिलियनेयर बिलियनेयर, उसके बाद क्या करोगे? एग्जैक्टली. उसके बाद की जो चीजें है ना, वो आई फील रतन टाटा, आनंद महिंद्रा ये लोग कर रहे हैं. मतलब इफ यू सी सम ऑफ देयर पॉलिसीज, सम ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स, द वे दे डील विद देयर वर्कर्स, बी इट समथिंग एज मीडियोकर एज दैट. मतलब अभी रिसेंटली आया था कि आनंद महिंद्रा ने डिसीज्ड पीपल के, ही वाज द वन हु स्टार्टेड, आई थिंक आनंद महिंद्रा और रतन टाटा, somebody, some telco steel firm, I think deceased people from COVID जिनके थे, मतलब main earner of the family अगर COVID से expire हो गया, they would fund their family for the next until the person's retirement. They would take care of the child's education and all. So ये सब जो चीजें ना, मतलब it makes you see that Anand, like Ratan Tata is not just trying to add numbers into his bank account. He's looking at something way bigger. So बहुत अच्छी चीज लगती है, and he's impacting the lives of millions. मतलब आज जब टाटा देखो, टाटा इंडस्ट्री makes a needle to a car. Yeah, so everything. Wide everything. Most of I'm happy, bro. Some people are like, some people say कि ये ऐसा वो वैसा. मैं समझता हूँ if Indian economy is being stabilized, एक अगर चल रही है तो वो कैसे चल पा रही है अगर इंडिया इतना सब कुछ कर रहा है. बहुत बड़ा टेक 5 बिग बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट जिसके बेस पे आज हमारा देश, मतलब ठीक है, लेट्स एक्सेप्ट इट, देश चल रहा है. राइट. Whether it is Anand Mahindra or we talk about Ratan Tata ji, whether we talk about, मतलब there are multiple, right? कम से कम वो लोग नहीं है जो देश के बाहर बैठे हैं and then they are supporting the, ऐसे भी businessmen हैं, मतलब Lakshmi Mittal, and we heard about various other people. But वहीं पे रहना, ऐसा तो नहीं है कि भाई वो छोड़ के कहीं और रह रहे हैं और फिर वो इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. They are still there, right? They are still there. Okay. So ये सब reasons की वजह से मेरे रोल मॉडल ऐसे सेट हो गए. And of course I don't mention Elon Musk as my role model generally, but वो भी है, but that is not because of his philanthropic or business aspect. That is only because of his innovative mind. मतलब वो जो concept है वो मैंने Elon Musk में जो देखा है, मतलब I've read his book, I've read his articles in XYZ. So the whole passion driven innovation, वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है. That is something I get really inspired from Elon Musk. Yeah, that guy I think so go belong his guts कि मन कर रहा है चलो, मन कर रहा है चलो.
ये नहीं how it's gonna happen. जैसे अगर ये निहाल के मन में आइडिया आया, अब इसको छोटे से हम आज ये 19 साल में अगर ये हैबिट है तो नो डाउट 45 years डाउन द लाइन यू कैन बी लाइक हिम, कि निहाल के मन में भागते भागते ट्रेडमिल पे एक आइडिया आया, अब करके देखते हैं, सक्सेसफुल हो नहीं हो कोई बात नहीं, करके देखते हैं। वो करके देखने वाला एटीट्यूड यू हैव दिस राइट नाउ, व्हिच इज अ बिग प्लस पॉइंट, क्योंकि होता तो बहुत के पास है, राइट? देयर रियली फ्यू पीपल जो कर लेते हैं, नहीं तो आता है जैसे कभी कभी हमारा कुछ लिखने का मन करता है, हम सोचते हैं ये जाके मैं लिखूंगा, वी फॉरगॉट दैट लाइन, नहीं करते हम, फिर उस पर कोई बात नहीं होती, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सो ग्लैड टू नो रोल मॉडल्स के बारे में भी। सो इससे अब हाउ यू आर, जैसे यू आर गोइंग विद द फ्लो, जैसे अभी चीजें बन रही हैं या आ रही हैं, सो इससे और क्या फ्यूचर दिखता है? हाउ यू गोना गो अहेड, लाइक व्हाट आर योर प्लान्स? डेफिनेटली इट गोना एक्सपैंड, यू नीड मोर expansion in the areas which you're not supplying right now, मतलब अभी जहाँ पे नहीं हो रहा distribution नहीं पे। regarding this very project or like this product, I am trying to set up a proper distribution network so that I can reach even into the deepest corners of the country, because India is a very big country and to reach out to a lot of people it's very बहुत intricate है, काफी जो branches है बहुत intricate है, तो एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ विद सम ऑफ द बिग डिस्ट्रीब्यूटर एंड सब मेडिकल इक्विपमेंट डीलर्स ऑफ ईच स्टेट, जो हर स्टेट का जो बिग शॉट है, आई एम ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट देम एंड उनके थ्रू मैं एक चैनल सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। एंड ऑफ कोर्स पैरेलली आई एम पुशिंग इट टू डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हु कैन डायरेक्टली एक्वायर इट फ्रॉम मी एंड गिव इट टू देयर डॉक्टर्स एंड लोअर लेवल स्टाफ हु कैन एक्चुअली नॉट अफोर्ड देमसेल्व्स प्रोबब्ली, सो उनको उस तरह सपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये प्रोडक्ट का फ्यूचर तो यही है। एंड देन पैरेलली व्हाट टेक्नोवेशंस के अंदर R&D डिवीजन में जैसे मुझे थोड़ा इससे टाइम मिल जाता है, आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड इनटू फ्यू मोर medtech innovations like a wireless stethoscope at a very affordable rate. So wireless stethoscope and prosthetic limbs में भी मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है। And then apart from medtech, I was planning with one of my colleagues, Jash Mehta. He's a young fellow at Riddle. He's a prodigy, amazing intelligent brain. So I was planning, we were in talks of making a serving robot for small restaurants and cafes, a very economical one. All right. Yeah, serving robot for small restaurants and cafes, mini robot kind of thing. तो अभी जो मार्केट में काफी एक्सपेंसिव है, तो एक छोटा सा जो बस कोई भी छोटा मोटा रेस्टोरेंट अफोर्ड कर सके, and more than dividing the workload, it is for marketing purposes and just to give the pizzazz. तो वो चीज के लिए हम लोग वो डिजाइन करने का इंडिया में एक बारी आ जाए ये चीज और हम लाने वाले पहले हो, ये आइडिया एक बारी आ जाए, सक्सेसफुल हो जाए, ऑन पेपर्स तो होगा, then again you get the limelight and everything. Exactly. तो बस वो एक चीज पाइपलाइन में है, कुछ प्रोजेक्ट्स, तो फिलहाल तो ये प्लान है। एंड देन विद माय होल करियर एंड एकेडमिक पर्सपेक्टिव, आई एम गोना फिनिश माय इंजीनियरिंग। अब चाहिए मतलब SSR की तरह, अब ये तो नहीं है कि लास्ट सेमेस्टर में छोड़ देता हूँ, आके ले लूंगा, कभी सक्सेसफुल हो गया तो कॉलेज डिग्री दे देगा कि निहाल सिंह। No. I have a dream, or like I have a really strong passion to go abroad and study in one of the Ivy League university. And वहाँ के किसी B स्कूल से अच्छा कुछ सीख के then maybe come back to India, contribute to India from there or something like that, or contribute to the whole world in general. Look at the bigger picture maybe. So एक अच्छे B स्कूल और अच्छे टेक स्कूल से कुछ मास्टर्स एंड कुछ स्पेशलाइजेशन करके eventually I want to get into entrepreneurship again. That is the plan. हाँ, ये तो साइड बाय साइड जब तक चल रहा है, लेकिन अपने आप पे तो फोकस करना ही है, राइट? बिल्कुल। ये बहुत मुझे अच्छा लगा, पता है काफी बार ऐसा होता है कि इन द यंग जनरेशन इफ यू हिट अ लाइमलाइट, और उसके बाद हम लगते हैं ऑफ ट्रैक चले जाते हैं कि अब क्या करना है पढ़ के, अब डिग्री गैप तो अपना ही फर्म खोल लेंगे, खोल तो रखिए, इतने सारे ड्रॉप आउट्स हैं, देयर आर सो मेनी स्टोरीज ऑफ ड्रॉप आउट्स, बट वी नेवर थिंक कि रियलिटी क्या है। उनका टाइम अलग था, चला गया, आज का टाइम वैसा नहीं है। ड्रॉपआउट्स की एक बात है, मतलब एवरीबॉडी सेज दैट एक्स मार्क ज़करबर्ग लाइक XYZ इज द ड्रॉपआउट। हां, बस वही चल रहे हैं पिछले, लेकिन they don't compare the thing that if I drop out I'll be a dropout from KJ Somaya, they are a dropout from fucking Harvard or something. वो डिफरेंस कोई मैप नहीं करता, लोग बस ड्रॉपआउट कहते हैं। वो कहाँ से ड्रॉप आउट है वो देखो, मतलब उनका कैलिबर, उनका एलुमनाई कनेक्शन उस लेवल का है। तो नॉट एवरीबॉडी शुड नॉट जस्ट बी लाइक कि मैं ड्रॉप आउट करके बन जाऊंगा, वो ऐसा नहीं है। नहीं, वो सोचता नहीं है ना कोई, सब उसको कंपैरेटिव से ही सोचते हैं। एंड इट्स नॉट ट्रू कि आप फेसबुक एक और बना लोगे, मतलब एक बात है, एग्जैक्टली नहीं पता, इवन इफ यू डू अ ड्रॉप आउट एटलीस्ट कुछ तो करो, क्योंकि देयर आर मिलियंस, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, मतलब बाहर भी कि इतने सारे ड्रॉप आउट्स हैं, राइट? लेकिन स्टिल क्या होता है, कुछ लोगों का कुछ नहीं होता, राइट? बिकॉज दे आर नोवेयर, उन्होंने कुछ नहीं किया, राइट? So, ये अभी एक ना बीच में एस्पेक्ट डिस्कस हुआ था रिलेशनशिप्स, ब्रो, उसके बारे में मुझे एक एस्पेक्ट तो जानना पड़ेगा, और इस एज में तो मेरा बड़ा पूछने का मन है, ये तो बहुत कम लोग पूछेंगे, निहाल सिंह से बाकी सारी बातें होती रहेंगी। भाई रिलेशनशिप कैसे संभाला?
सारी बातें हटाओ. The burning topic is, yeah. So actually I'm still not dating anybody, but then I was in talks with somebody that time. Yeah. And surprisingly, I was actually thoda complicated scene tha, one sort of, you know, confusion between two and like being friends with one and going for the other. Thoda sa weird scene chal raha tha. So hota hai. Bilkul. So but like she has been very supportive. The one I'm talking about right now, the one I'm thinking about right now, whom I probably might be get serious with in future. Okay. She has been really incredibly supportive. She has seen your ups and downs, right? Exactly. She has been there from day one. मेरे काफी friends, I mean, मेरे जो project में partner थी साइली भवसर, she has also been there from day one. My friend, my roommate Kevin. So ये सारे दोस्त लोग जो थे मेरे सब, they have been there from day one. And surprisingly, I'm blessed with friends who never really made a fuss about कि निहाल हमसे बात नहीं कर रहा रोज निहाल हमसे 3-4 दिन बाद कॉल कर रहा है. They understood कि मतलब I'm the real gem friends मिले हैं, मतलब real gem connections मिले हैं कि 3 महीने भी बात ना हो तो ऐसा नहीं है जैसे होता ना अगले दिन बात ना हो, एक हफ्ते से उसका फोन नहीं आया, छोड़ना अब क्या बात करनी है. एक वो वाले फ्रेंड्स होते हैं कि ऐसा नहीं मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ईगो में वो जो भी बनती इसकी टॉकिंग बट ऐसा नहीं कि ईगो में उसने कॉल नहीं किया फिर से. मतलब ऐसा कई बार होता था कि मतलब शी इज द वन कॉलिंग एंड अगेन, मैं भूल जाता हूँ कॉल करना. शी वाज कॉलिंग अगेन एंड अगेन एंड शी हैज बीन अ रियल स्वीटहार्ट. सो आई वाज लकीली ब्लेस्ड, तो इसलिए मैनेज हो गया. एंड अगर सपोज किसी का ये नहीं होता है तो देन तो आई डोंट नो, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग बिकॉज द अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट it takes to build a company. It's I don't know how people actually manage their private personal life and relationships. That is something I need to learn eventually, but I'm only a 19 years old. That balance bro 90. हाँ अब वो वाला excuse आ जाएगा कि अरे अभी तो उम्र अब तो जो लोग बोल रहे हैं वो मैं भी बोल ही सकता हूँ कहीं ना कहीं लूप होल में कि यार 19 साल के हो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब हो जाता है ना, वो चीज आ ही जाती है. On the professional aspect, how do you think कि टीम कितनी important, क्योंकि यार ऐसा होता है ना हम इन लोगों को देखते हैं जैसे जो सक्सेसफुल इवन आज निहाल भी है तो you talk about you certain aspects, तुमने बोला कि ये टीम मेरा वो सीनियर वो वहां से, so इससे ये पता लगा कि you had a team, that is why निहाल को तो टेंशन मिल रही है अभी ये टेंशन ये वाला, you are a team, you are a representative of a team, one of the, ठीक है. लेकिन उन सब में से ये टीम कितना बड़ा रोल मतलब इम्प्लाई करती है, हाउस ऐसा होता है ना हमारी मन ये कहता है कि ओके मेरे पास आइडिया, मैंने ये किया, मैंने तूने एक माइंडसेट आ जाता है कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया ना, आइडिया तो मेरा था ना. मुझे टीम हमारी जनरेशन मतलब हमारी एज में चीज होती है, बहुत होती है कि एक तो टीम में काम करना मेरा. सो द सेम ऋत्विक भैया जो जिनकी बात कर रहा हूँ, मेरा उनके साथ भी थोड़ा इस बात पे कंफ्यूजन हो गया रिसेंटली. सो होता है, मतलब डेफिनेटली ये बात होती है. एंड दिस इज समथिंग इवन आई हैव लर्न्ड टू कीप द टर्म्स एंड कंडीशंस वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन. So the original idea was mine, and literally everything, मतलब एक स्क्रू लगाने से लेके उसका इलेक्ट्रिकल वायरिंग लगाने से लेके डिजाइन्स मेंटली सोचने से लेके सब कुछ मैंने किया था. ऋत्विक भैया definitely played a very important role. He helped me convert my designs into 3D models and all. From the paper to the practicality. हाँ एग्जैक्टली. सो लेकिन उसके लिए उनकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा थी जो मुझे लगा कि नहीं देनी चाहिए. मतलब जैसे पेटेंट के ऊपर से थोड़ा डिस्कशन हुआ था तो मैं सोचा कि पेटेंट तो इनोवेटर के नाम पे होना चाहिए. आई एम द वन हु गॉट द आइडिया, आई एम द वन हु इज गिविंग यू द डिजाइन. Yeah, that's how it works. Yeah, so that's how it should work. And of course, since I am new into the field, I consulted a senior as well, जो हमारे टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर के जो CEO थे, गौरांग शेट्टी. मैंने उन्हें ही पूछा, I asked him कि so what do you feel, मतलब should it be a joint patent thing or is it not required? Because just filing a patent is different and pursuing a patent is different, right? So he said that whoever is going to take the headache of actually pursuing the patent, giving him drafts, attending their 1 million calls about every little detail up to a millimeter, he should get the patent on his name. मतलब ये सब करना चाहिए, मतलब किसी को पेटेंट में अपना नाम चाहिए. So that's why I did all of that and I took a patent on my name. But recently फिर थोड़ा उस पे डिस्कशन हो गया तो वो चीजें मैंने भी सीखी कि you should keep the terms and conditions very clear right from day one. But yes, team is very important. Without Ritwik Bhaiya, I wouldn't have been here. Without Saili Bhavsar, she handled the whole social media, website, the whole company ka front face. You know, the user's interaction with the brand. You need a team, bro. Yeah, it's always said. बहुत कम उम्र से बोला जाता है कि सब कुछ आप खुद नहीं कर सकते, but still the whole game when you look at just sit and look at the game ना, तो यही होता है कि मुझे कुछ बनना है, मैं कर लूंगा. You would not be able to. You would not be able to without a team. Exactly. You should have a team and you should be very smart at delegating things. मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मेरी कंपनी का आज एक भी एस्पेक्ट नहीं है. There's not a single detail which hasn't been monitored by me. But then there are things which I don't do myself. मैं कह देता हूँ इनको कि तुम ऐसा बना दो, मेरे दिमाग में ये आइडिया है. एंड ऐसा कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब जैसे साइली भवसर करके जो पार्टनर है मेरी,
she is way too skilled in making presentations and doing graphic content and all. So वहाँ पे I'm not bossy about it. वहां पे आई बी लाइक कि मतलब ठीक है, मतलब उसका वो स्किल सेट है तो तू वो कर. शी कैन नॉट टेल मी कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग कैसे करनी है, बिकॉज़ दैट इज माय स्किल सेट. जो अपने एस्पेक्ट का प्लेयर है उसको बोलो और डॉट्स को कनेक्ट करो. थोड़ा भरोसा करना चाहिए. यू शुड ट्रस्ट ऑन दैट पर्सन एंड यू शुड डेलीगेट दैट वर्क टू देम. एंड मतलब तुम थोड़ा सा गाइड करो कि मतलब तुमको कंपनी का थीम लेट्स से ब्लू कलर रखना है, तो मैंने उसको सिर्फ इतना बोला था कि भाई ब्लूइश कलर में रख पूरी कंपनी का थीम. दैट्स अ कलर आई लाइक एंड आई वांट टू कीप द ब्रांड अराउंड दीस कलर्स. So उसने वो उतनी चीज मैंने उठाई, लेकिन then she was free to do whatever she wants. She was free to make designs. We used to discuss, we used to debate, we used to argue इधर plus minus क्या. But then I gave her more control. So कोई भी टीम बनाते हो ना, you should trust your partners, and जो उनका skill set में proficient है ना, give them 80% of that thing. तुम बस थोड़ा सा delegate the things. Don't try to be like कि bossy की मैं ही करूँगा, मुझे तो पता होना चाहिए. मतलब पता होना चाहिए, लेकिन लीडर की मुझे लगता है बहुत बड़ी क्वालिटी है which you have in the इस एज में भी है. मतलब कई बार मुझे लगता है कि यार एज इज जस्ट वो प्यार में नहीं, वो एज इज जस्ट अ नंबर. पता है आपको आज निहाल 19 का हो गया, हो सकता है कोई 12th क्लास का बच्चा ये आइडिया सोच रहा था लेकिन वो बस इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया. राइट, इट्स ऑल अबाउट गेटिंग. हाँ, रेस वही है, इट्स अबाउट गेटिंग फर्स्ट. काफी लोगों ने ट्राई किया होगा ये बनाने का. जैसे अभी आई लिटरली फ्रेंड सर्कल में मेरी बात हुई थी, हाउ आई गॉट टू नो यू, कि ऐसा कुछ हुआ है. राइट, मेरे फ्रेंड्स से मुझे बात आई, क्योंकि मैं यहाँ बैठा बैठा इतनी भी पब्लिसिटी नहीं है अभी कि मैं यहाँ से बैठ के यहाँ के न्यूज चैनल्स पे निहाल की बात आ रही है. जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे भी थ्रू अ फ्रेंड पता लगा. मुझे लगा ओके I'll go with निहाल, मुझे बंदे को बुलाना तो है बिकॉज ऑफ ही इज अ राइजिंग बॉडी. राइट, सो हाउ मतलब ये होता है ना कि एक डायलेमा चलता रहता है. यू गेटिंग इट कि अगर हिंदी में बोलूं या तुम मुंबई में कि पंखा ही तो बनाया है, कौन सी बड़ी बात कर दी, क्या बनाया, अबे पंखा ही तो बनाया है. मतलब अब ये फनी, इट साउंड्स फनी, लेकिन हमारी एज के बच्चे ऐसे ही बात करते हैं. इफ यू आर दे वुड नॉट बी लाइक कि ओ निहाल ने अरे भाई ये बता इतना मॉड्यूलिंग सिस्टम में पंखा ही बनाया है, कौन सी बड़ी बात कर दी. उन लोगों को कुछ कहना है मेरे प्लेटफॉर्म के जरिए, उन लोगों को कुछ कहना है जो ये कहते हैं अरे पंखा ही तो बनाया है. मतलब तो इसका मैं 2 आंसर दूंगा. पहली बात, अगर कोई मैच्योर ऑडियंस सुन रही मेरी बात, कोई डॉक्टर सुन रहा है सपोज आपका पॉडकास्ट, तो मैं उनको बोलूंगा कि सर ये पंखा नहीं है, सर और मैडम ऑफ कोर्स. सो ये कोई पंखा नहीं है. मतलब दिस इज अ वेरी हाईली एर्गोनॉमिक डिजाइन दैट वी हैड थॉट. जस्ट अटैचिंग अ फैन वाज नॉट द होल एस्पेक्ट. कहाँ अटैच करना है, किस तरह अटैच करना है, डॉक्टर बैठेगा, खड़ा होएगा, हिलेगा, उस हिसाब से वो फैन स्टिल काम करना चाहिए. दैट वाज एन एस्पेक्ट. उसका एयर फ्लो रेट कितना होना चाहिए, वो हवा फिल्टर्ड आनी चाहिए अंदर से, उसका फैन की स्पीड कंट्रोल होनी चाहिए, स्पीड कंट्रोल रेजिस्टेंस के थ्रू नहीं होनी चाहिए, उसमें हीट लॉसेस होंगे, तो इसलिए पल्स विद मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू स्पीड कंट्रोल करनी. ये सब गया है इसमें. प्यार का पंचनामा जैसी टाइप की चीज लग रही है, बट गो ऑन. तो ये सब तो गया है इसमें. सो दिस इज नॉट जस्ट अ फैन. एंड दूसरा, इसका एक स्मग आंसर मैं दूंगा कि कोई अगर मेरे एज का है और अगर थोड़ा ऐसा जेलस वे में बोल रहा है कि मतलब पंखा ही तो बनाया, तो तुम बना दो, तुम बना के दिखाओ. Yeah, bro. बना दो, आप बना दो. Yeah, bro. Yeah, that's nice. ये मुझे सुन के अच्छा लगा, ये वाली बढ़िया था. ये अच्छा था. Yeah. So इसके जो मतलब WAT technologies, if I'm pronouncing it right. What technovations? What technovations? Sorry. What technovations? यही नाम क्यों? कुछ भी हो सकता है. So साइली बाब सर जो मैंने बोला, वो एक्चुअली मेरी काफी क्लोज फ्रेंड भी है. तो हम लोग ऐसे नेम ब्रेनस्टॉर्म करते थे कि कौन सा नाम रखना चाहिए. I was hell bent on PIY, where I write Y as the pi, mathematical pi icon. PIY. तो मुझे थोड़ा ऐसा थोड़ा किंकी लगा मुझे, तो लाइक ये कर सकते हैं. बट देन ठीक है. मतलब उसने बोला कि थोड़ा मतलब डिफिकल्ट है, पीपल विल नॉट कॉल इट PIY, PI लिख देंगे, PIE लिख देंगे, तेरे को हर जगह करेक्ट करते बैठना पड़ेगा. तो मैं बोला कि ठीक है कुछ तो और करते हैं. देन टेस्ला company is named after one of their favorite scientists, Nikola Tesla के ऊपर नेम कर दिया था. तो मेरे I am more of a, even though I'm pursuing electronics now, but I am much more in love with mechanics and mechatronics and mechanical side of physics. Okay. तो इसलिए जेम्स वॉट जिन्होंने इंजन बनाया था, वॉट पावर, यूनिट ऑफ पावर, इसलिए बोले कि चलो वॉट रखते हैं. एंड वॉट आ गया वहां से, एंड वहां से भी टेक्नोवेशंस, क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, तो वी जस्ट मर्ज देम एंड टेक्नोवेशंस. सो वहां से वॉट टेक्नोवेशंस नाम आया. ओके. हाँ, मतलब आ रहा है वही फिलॉसफी. यहाँ पे भी टेस्ला, उन्होंने टेस्ला लिया, और यहाँ पे हाँ सही चल रहे हो, सही रास्ते में चल रहे हो. निहाल जी पक्का 25 और फिर 40 में निहाल सिंह की कंपनी के स्टॉक्स. हाँ हम उतनी दूर तक देख रहे हैं. राइट. अगर लेकिन ये सच होता है निहाल, फिर आना पड़ेगा वापस इस प्लेटफॉर्म.
क्योंकि मैंने तो आज प्रेडिक्ट कर दिया, हो सकता है आगे वाले टाइम में, मतलब मुझे नहीं पता कितने लोगों ने निहाल के लिए सोचा और बोला गया चैनल पे, बट मैं तो बोल रहा हूँ कि 25 इयर्स इस एज में निहाल ये करेगा, फिर 40 तक पहुंचते पहुंचते कुछ और बड़ा करेगा, राइट? डेफिनेटली चलो तो इसमें बिकॉज ऑफ द फंड्स फाइनेंशियल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, राइट? फाइनेंस, हाउ डिड यू टैकल द फ्रॉम द इनिशियल लाइक द प्रोटोटाइप फर्स्ट टू योर 12th, आई थिंक सो 12th वाला था, ये 12वां था व्हिच यू हिट बैंग ऑन, सो इसके फाइनेंस कैसे मेंटेन हुए? तो बिकॉज ये बातें तो बहुत हो जाती है, लेकिन money is the real game, bro. Let's face it. Real game. Money is the real game. So what happened was कि initially जब मैं कॉलेज गया था, जो मैंने फर्स्ट वर्किंग प्रोटोटाइप डेवलप किया, उसके लिए जो मोटर्स एंड वो सब चाहिए थे, वो मेरे डैड ने फंड किया. Like by God's grace, my dad he teaches for IIT JEE. I'm sure you're aware of the exam. Yeah. So IIT JEE in India, he owns one of the academies. So by God's grace, we're financially sound. So he could fund the initial part, and तो इनिशियल सिर्फ 8-10 हजार की फंडिंग डैड ने डाल दी थी, एंड उससे मेरा फर्स्ट वर्किंग प्रोटोटाइप का रॉ मटेरियल एंड मोटर्स एंड छोटी मोटी बैटरीज ये सब टैकल हो गया. उसके बाद लकीली उसके बाद जब मैं फर्दर डेवलपमेंट स्टेज में गया, तो दसॉल्ट सिस्टम्स करके बहुत बड़ी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, दसॉल्ट एविएशन, जिन्होंने फाइटर प्लेन्स, दसॉल्ट एविएशन, रफाले जो जेट्स है वो सब Dassault Aviation बनाता है, and then they manufacture. So Dassault is a very big company. So they are the parent company of the solid 3D building softwares that you guys are using nowadays. Industry में जो softwares use होते हैं ना, उसकी parent company है. तो Dassault Systems से मुझे सामने से कॉल आया कि सर हमको आपका innovation काफी अच्छा लगा, and we would like to support you. And in return they just wanted branding and recognition that I have used their platform, which I was anyway using. So उनको branding recognition चाहिए था. In return of that, they were ready. They gave me access. Give you full access of everything, full support of. हाँ, मतलब उनके labs का access दे दिया, raw materials का cost उन्होंने उठा दिया, and main हमको lab का access चाहिए था, and raw material का cost ही चाहिए था. So वो सब उन्होंने कर दिया. तो बचा कुछ थोड़ा सा जो था traveling का expenditure, खाने पीने का थोड़ा बहुत, तो वो हमने फिर से manage कर लिया डैड ने. उसके बाद जब मेन मैन्युफैक्चरिंग में जाने लगे, जब मुझे ऋत्विक को पेमेंट करना था, एंड व्हेन आई हैड टू स्टार्ट गिविंग, जब बिजनेस का मेरा ऊपर वाला एस्पेक्ट समझ में आने लग गया, एग्जैक्टली जब कमर्शियल एस्पेक्ट आने लग गया, देन मुझे बिजनेस ट्रैवल करना पड़ रहा था मुंबई काफी टाइम से, टू मीट द पेटेंट लॉयर, टू मीट एन एक्सपोर्टर, टू मीट एन इंपोर्टर. तो वो सब जो चीजें मुझे बिजनेस ट्रैवल करने पड़ रहे थे, तो उस सब का एक्सपेंडिचर के लिए मेरा रिडल, जो मेरा टेक्नोलॉजिकल बिजनेस इंक्यूबेटर है रिडल, दे हेल्प मी टू बैग द निधि प्रयास ग्रांट. So Department of the government aid comes into the picture, right? लोग सोचते हैं government aid का क्या फायदा है, पढ़ते ही नहीं है स्कीम्स के बारे में, right? ना. तो मतलब ये बात मैं एडमिट करूंगा कि government aid मिलना काफी hectic process है. It's a lot of paperwork and but it's worth it. But it's worth it. मुझे 10 lakh rupees against zero equity. I don't owe anything to anybody, and I got rupees 10 lakh for development of my project, which is a very big amount, which is a very decent amount for any prototyping stage. सुन रहे हो? तो मुझे 10 लाख रुपए का वहां से फंड मिल गया, एंड वो फिर फंड से मेरा सब किक स्टार्ट हो गया सब कुछ. आई कुड पे द डिजाइनर्स, आई कुड पे फॉर एवरी ट्रैवलिंग, आई कुड पे फॉर प्रोटोटाइपिंग एंड पायलट टेस्टिंग के रॉ मटेरियल्स, आई कुड पे फॉर द मोल्ड, जो मेरे जो अभी फाइनल प्रोडक्ट जो बन गया उसका जो मोल्डिंग प्रोसेस होता है एक ट्रायल टेस्ट यूनिट्स निकालने के लिए, तो मोल्ड काफी महंगा होता है. आई कुड पे फॉर द मोल्ड एंड एवरीथिंग. सो उधर से मेरा 10 लाख रुपीज निकल गया. एंड देन उसके बाद मेरे कॉलेज में जो मैनेजमेंट कॉलेज है, वहाँ पे सिमसर करके जो मैनेजमेंट कॉलेज है बेसिकली, उनका भी एक अलग सा स्कीम चलता है कि वो इन हाउस इन कैंपस जो यंग स्टार्टअप्स है बेसिकली, अगर उन्हें पसंद नहीं है तो उनको फंड कर देंगे थोड़ा सा. तो उसमें मुझे वहां से 5 लाख रुपीज मिल गए फॉर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट पर्पसेस एंड इन्वेंटरी सेटअप एंड एवरीथिंग. सो टोटल अभी तक 15 लाख. मतलब सॉरी टू डिस्टर्ब यू, व्हेन आई एम लिसनिंग टू यू राइट नाउ ना, हम बच्चे मतलब हम नहीं सोचते इन सारे एस्पेक्ट्स के बारे में. when you are talking, मतलब आई एम टॉकिंग टू अ गाय जिसने इतना कुछ कर लिया, और मेरे मन में था, मतलब सो कॉल्ड डाउट था, यार ऐसे कहां से आए होंगे यार, इतने एज के बच्चे को इतना तो कमा नहीं रहा होगा, कॉलेज के सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में है, ये सब पॉसिबल कैसे हुआ होगा? एंड नाउ व्हेन आई एम लिसनिंग टू यू, क्यों नहीं हो सकता पॉसिबल? मतलब अगर किसी का बिजनेस आइडिया में पैसे या कुछ दिक्कत पड़ रही है, तो इट्स नॉट अबाउट कि फंड्स अरेंज नहीं हो सकते. अगर निहाल कर सकता है, अगर माने कि चलो प्रोसेस right कि college के venture capitalist anybody, the story started out because of a college competition. अगर आज मैं आपकी स्टोरीज पढ़ रहा हूँ ना, पता है स्टोरी कहाँ से शुरू हुई है? वो माना मम्मा ने आइडिया दिया निहाल ट्रेडमिल, लेकिन स्टोरी कॉलेज के कंपटीशन से शुरू हुई है. अगर बिल्कुल कॉलेज कंपटीशन नहीं रखता तो ये सब नहीं होता. एंड हम लोग कॉलेज के कितने कंपटीशन में पार्ट लेते हैं? कोई नहीं लेता ब्रो. कॉलेज एडमिशन वैसे बोल रहा हूँ, मतलब जो सो कॉल्ड 80% ऑफ द पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट, वो उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कॉलेज में क्या चल रहा है. Exactly. ठीक है, let's face it कि okay. Yeah, true. So मतलब I'm so surprised कि
पता नहीं where we are heading on, and but the plus point is we have people like you, and मतलब मैं तो मी क्या बोलूं, लेकिन still somehow we have people look up to you और ऐसे काम करते हैं, और इस प्लेटफॉर्म पे मैं लोगों को बुलाता रहूं, right? So और कुछ so फंड मैनेज हो जाते हैं, that one thing कि फंड मैनेज हो जाते हैं, and then उसके बाद then आपका थोड़ा सा अगर आइडिया हिट हो गया ना, so then you basically mean for all young startup the concept of incubators and startup accelerators is amazing. You get a lot of contacts and connections there, and हर incubator के साथ बहुत सारे angel investors and venture capitalists attached होते ही हैं. You pick any incubator. So अगर आप एक भी incubator में अपने आप को attach कर दो, वो incubator को अगर आपका idea अच्छा लग गया, they can connect you to 100 different people who can pump a lot of money into your idea if they like it. So that's pretty much it. हाँ, जैसे बोलते हैं your network is your net worth. Exactly. का जो सर्कल है, even successful people say कि आपके 5 दोस्त दिखा दो जिनके साथ आप उठते बैठते हो, आपका फ्यूचर पता लग जाएगा. Literally, that's very true. Warren Buffett का line है, I think. हाँ, मतलब I don't know किसका है, लेकिन but I do have listened कि बहुत common saying है कि हाँ यार हमारे हिंदी में वो ठीक है, हाइप करके हम वेस्टर्न पढ़ लेते हैं, हिंदी में भी बड़े बोलते हैं कि अपनी संगत, बेटा दोस्त हमेशा वही बनाना जो अच्छे हों. कोई ये नहीं कहता है, कोई माँ बाप ये नहीं कहते कि बेटा जाके अपना जो 10वीं मतलब जो फेल हुए हो या जो नशा करते हो उनके साथ जाके बैठो. हाँ, बिल्कुल. वो बॉसिया में इसलिए अच्छा लगता है, वो इंग्लिश में लाइन पढ़नी हो, देयर आर 5 फ्रेंड्स जो सक्सेसफुल बनेंगे, वो हमें बहुत अच्छा लगता है. सो these days निहाल, टू बी रियली ऑनेस्ट, जब मैं जैसे बाहर भी मैं भी काम करते हैं कहीं पे भी हूँ, आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस जो बड़े लोग हमें 2 लाइनों में कह देते थे हिंदी में, बेशक मुंबई में मतलब पुणे लैंग्वेज में, वो बाहर के बड़े बड़े जब मोटिवेशनल स्पीकर स्टेज पे बोलते हैं हमें बहुत अच्छी लगती है भाई. लेकिन हमारे घर में अगर हमारे फादर 2 लाइनें वो बोल देंगे ना कि बेटा टाइम वेस्ट मत करो और इस काम से ये हो जाएगा, तो हमें लगा अरे ठीक है, पता तो है. तो घर की मुर्गी दाल बराबर चीज हो गई. बिल्कुल वही बात है. अब यही अगर ये जो वेंटिलेशन सिस्टम है, यही अगर कोई बाहर इनोवेट कर देता ना, मतलब किसी बाहर कंट्री में, लेट्स से मतलब दुबई या एनीवेयर, कनाडा, यूएस, तो इतनी रिकॉग्निशन मिलती भाई साहब, इतनी रिकॉग्निशन मिलती. और डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि निहाल को उतनी मिली है, डेफिनेटली मिल रही है, इट विल बी लाइक, लेकिन उतनी नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए, जितना शायद मुझे लगता है कि यार 19 ईयर ओल्ड और मिलनी चाहिए रिकॉग्निशन. ये स्टोरी रहनी चाहिए थोड़े दिन लूप में, कि दो एटलीस्ट 1.5 साल तक या आगे से आगे बढ़ती रहे, ये स्टोरी आती रहे. कोई बात नहीं, स्टोरी रेपिटेटिव हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये जितने चैनल्स पे जा सकती है जानी चाहिए, जितने लोगों से कनेक्ट हो सकती है होनी चाहिए, ताकि एक प्लेटफॉर्म बनेगा, राइट? बिकॉज अभी जैसे मैंने देखा, यू हैव ओनली 2 or 3 इंटरव्यूज राइट नाउ व्हिच आर ऑन YouTube, और मे बी मतलब थोड़ा बहुत वैसे जो मैंने देखा, मतलब सॉरी टू करेक्ट यू हियर, बट 108 है. 100. Oh, you have been counting? Okay, चलो 108 है. 108 है मेरा. Sorry, लेकिन ये I get your point, और हो सकता था, और मतलब मेन पे जा सकता था. हाँ बिल्कुल. क्योंकि यार और बहुत चीजें होती हैं जिनकी जरूरत नहीं होती न्यूज चैनल्स पे, जिनकी जरूरत नहीं होती, ऐसी चीजों पे डिबेट होती है जिनकी जरूरत ही नहीं है. मतलब व्हेन यू वॉच लाइक बिग टीवी डिबेट्स, उनका वहां कोई काम नहीं है, बस 3 घंटे तक बोले जा रहे हैं, और लोग सबसे बड़ी बात सुने जा रहे हैं क्योंकि टीआरपी आ right. So I don't know what kind of content we are consuming, but still एक्चुअली बन इसलिए रहा है क्योंकि कंटेंट है, तो फिर बनेगा भी ना. मतलब लोग देख रहे हैं, लोग देखना पसंद करते हैं. अब शायद ऐसी स्टोरीज को, ऐसी स्टोरीज को लोग नहीं देखना पसंद करते होंगे, यार इतना टाइम किसके पास है, अच्छा ठीक है कर दिया, हाँ बहुत अच्छी बात, मतलब एक बात है. एग्जैक्टली. चलो, इट वाज एनीथिंग यू वांट टू से, लेट्स वाइंड दिस अप. No, I wanted to thank you for this opportunity, and I hope a lot of people listen to this. I hope this gets viral in some way. Even bro, even if one person listens to this, I am cherishing this moment कि I got to know about you. मतलब होता है ना कि कहीं से कोई कुछ राह बनती है, एटलीस्ट क्योंकि मैं कहीं और बैठा हुआ हूँ, ऐसा भी नहीं कि मैं वहीं पे और बिल्कुल क्लोज टू योर हाउस और कहीं और स्टेट्स में, इतनी दूर से इट्स नॉट कि बन गया, क्योंकि सबकी बात निहाल से नहीं हो सकती, हमारा चलो कांटेक्ट करते हुए बन गया, एंड आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम प्रिविलेज्ड. थैंक यू सो मच. एंड मुझे जैसे यू आर टॉकिंग अबाउट कि रतन टाटा, ब्रो मुझे तो तूने भी इंस्पायर किया. Thank you so much. Still I am looking into you कि मुझे भी था कि इस कॉन्वर्सेशन का क्या बनाया जाए. We haven't kept it scripted, right? तो मैंने वही सवाल पूछे जो मेरे मन में एज अ लिसनर या मुझे निहाल को स्टोरी को देख के डाउट्स थे, whether it was finance, whether it was your business, whether it was your marketing aspect. So thank you so much. And मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ you have shared it. मतलब कहते हैं इतना ट्रांसपेरेंट हो गया ना, शायद ही कोई बंदा बोलता हूँ. कीप दैट क्वालिटी इन यू, नो मैटर तो कितनी हाइट्स अचीव करे. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Yes. Have a good day. Take care. Thank you, man. Thank you. Bye bye.